ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے نومبر کی 26 اور جمادی الاخر کے 4 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا نے ممبر پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان کی قیادت میں لیہ و کرگل کے ٹیکسی یونین کے وفد سے اہم ملاقات میں کمشنر سیکرٹری ڈاکٹر ایل فرینکن، آر ٹی او لداخ ڈاکٹر زاہدہ بانو، ایڈیشنل سیکرٹری محمد عثمان خان اور یونینوں کے نمائندے بھی موجود تھے. وفد نے گاڑیوں میں وہیکل لوکیشن ٹریکنگ ڈیوائس کی لازمی تنصیب اور 15 سال سے زائد پرانی گاڑیوں کی رجسٹریشن میں درپیش مشکلات پر تفصیلی گفتگو کی. وی ایل ٹی ڈی کی بلند قیمت کے باعث پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے وفد نے مطالبہ کیا کہ کم نرخوں پر ڈیوائس فراہم کرنے والی مزید کمپنیوں کو شامل کیا جائے. بھاری گاڑیوں جیسے ٹرکوں اور ٹیپرز کی رجسٹریشن کی تجدید کے لیے مہلت میں توسیع، تجارتی گاڑیوں کے ریاستی پرمٹ، لداخ سے جموں و کشمیر تک آزادانہ نقل و حرکت کے لیے پرمٹ کی باہمی منظوری، کرایوں میں نظر ثانی اور ملکیت کی منتقلی کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی بھی درخواست پیش کی. وفد نے امید ظاہر کی کہ انتظامیہ ان مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کرے گی. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے منگل کے روز مختلف اہم دفاتر اور جاری بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا تفصیلی معائنہ کیا. انہوں نے سپرنٹینڈنگ انجینئر PHE-INFC سرکل کرگل کے دفتر، کونسل سیکریٹریٹ کے اطراف، زیر تعمیر کانفرنس ہال اور کینٹین کا جائزہ لیا. CC نے دفتر کے تمام شعبہ جات کی کارکردگی، عملے کی حاضری اور نظم و نسق کو تسلی بخش بنانے کی ہدایت دی. انہوں نے جاری کاموں کی رفتار، عمارتوں کی حالت اور عملے کی دستیابی کا بھی جائزہ لیا. کونسل سیکریٹریٹ کے اطراف ملبے کی موجودگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے فوری صفائی کی ہدایت دی. کینٹین کے معائنے کے دوران سہولیات کی کمی پر کنٹریکٹر کی شکایت سنی گئی، جس پر ڈاکٹر آخوند نے یقین دلایا کہ خدمات کو بہتر بنانے کے لیے دوبارہ ٹینڈر جاری کیا جائے گا. زیر تعمیر کانفرنس ہال میں انہوں نے معیاری اور بروقت تکمیل پر زور دیتے ہوئے کام تیز کرنے کی ہدایت دی. CC نے کہا کہ LHDC کرگل انتظامی ڈھانچے کو مضبوط بنانے، مؤثر عوامی خدمات کی فراہمی اور ترقیاتی کاموں میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. سری نگر کے دل بسنت باغ میں آپ کے خوابوں کا گھر اور بہترین سرمایہ کاری کا شاندار موقع. یہ خوبصورت پراپرٹی لال چوک گھنٹا گھر سے صرف 700 میٹر کے فاصلے پر ایک نایاب مقام پر واقع ہے. پراپرٹی 1 کنال 3 مرلہ کے کشادہ پلاٹ پر تعمیر ہے. منفرد ڈیزائن، دلکش سیڑھی دار جدید ڈیزائن. اس وسیع عرضی پر 2 بہترین منصوبہ بند گھر موجود ہیں. اہم خصوصیات: 4 بیڈ روم، 1 خوبصورت ڈرائنگ روم، کشادہ لابی اور 4 اضافی کمرے. بسنت باغ ایک سیمی کمرشل ایریا ہے جہاں رینٹل ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. آپ ایک حصہ اپنی رہائش کے لیے استعمال کریں اور دوسرے حصے سے مستقل اور مضبوط کرایہ حاصل کریں. قریب ہی مارکیٹس، کوچنگ سینٹرز، سکولز اور دفاتر موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ مقام پیئنگ گیسٹ اور سٹوڈنٹس ہاسٹل کے لیے آئیڈل ہے. یہ گھر صرف رہائش نہیں بلکہ آپ کے مستقل مالی مستقبل میں ایک بہترین سرمایہ کاری ہے. اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. مزید تفصیلات یا پراپرٹی دیکھنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں 9796587104 یا 8448581685. بسنت باغ سری نگر، وہ منزل جہاں آپ کا خواب اور منافع یکجا ہوتے ہیں. ایگزیکٹو کونسلر برائے اینیمل و شیپ ہسبینڈری آغا سعید مشتبہ نے گربتھنگ میں جدید طرز کی مدینہ ڈیری فارم کا افتتاح کیا، جو 5 گائیں پر مشتمل یونٹ ہے. یہ منصوبہ اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت
12.24 लाख रुपए की लागत से कायम किया गया है, जिसमें से 6.12 लाख रुपए बतौर सब्सिडी फराहम किए गए हैं। इसका मकसद मकामी डेयरी सेक्टर को मजबूत करना और नौजवानों को डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब राग़िब करना है। इसी ने नौजवानों से अपील की कि वो महकमे की स्कीमों से फ़ायदा उठाकर डेयरी फार्मिंग में आगे आएँ ताकि दरामद शुदा दूध पर इन्हिसार कम हो और मकामी पैदावार में इजाफा हो। महकमे के मुताबिक मदीना डेयरी फार्म मॉडल यूनिट के तौर पर दीगर किसानों के लिए रहनुमाई साबित होगा और ज़िले में दूध की सप्लाई चेन को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। जब बात हो गाड़ी की परफॉर्मेंस की तो समझिए बात है ताकत की, और ताकत का दूसरा नाम है एमेरॉन बैटरीज। चाहे सर्दी हो या गर्मी, लंबा सफर हो या मुश्किल रास्ता, लद्दाख जैसे सर्द इलाके में एमेरॉन देगा हर लम्हा भरपूर पावर। इतना ही नहीं बल्कि आप अपने पुराने बैटरीज को भी नए बैटरीज से तब्दील कर सकते हैं। एमेरॉन बैटरीज अब दस्तयाब है आपके अपने शहर में। एमेरॉन शोरूम अपोजिट इस्लामिया स्कूल कॉम्प्लेक्स, पेट्रोल पंप, कुर्बथंग, करगिल। एमेरॉन लास्ट लॉन्ग, रियली लॉन्ग। महकमे बागबानी की जानिब से लेह ज़िले के 25 किसानों का एक तरबियती दौरा श्रीनगर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर के लिए रवाना किया गया। इस दौरे का मकसद किसान को जदीद बागबानी के अमली तरीक़ों जैसे कलमकारी, पेवनकारी, शजर तराशी और तरबियती टेक्निक्स फराहम करना है ताकि आला मेयार के ख़ुबानी और सेब के नर्सरी यूनिट्स कायम किए जा सकें। काश्तकार अपने दौरे के दौरान अहम नर्सों और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी जायज़ा लेंगे, जहां अमली डिज़ाइन, तरबियत और बागबानी के मॉडल से आगाही हासिल करेंगे। इस इक़दाम से लद्दाख में साइंसी बागबानी के फ़रोग़ और किसान की सलाहियतों में इजाफ़ा मुतवक्का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर व लद्दाख का सबसे शानदार प्राइवेट हॉस्टल, जहां का हॉस्टल कॉम्प्लेक्स शाहराह से सिर्फ 500 मीटर दूर हरे भरे माहौल में 7 कनाल रुकबा मौजूद हैं, जहां पर ठहरे हुए बच्चे शहर जम्मू के बेहतरीन प्राइवेट इदारे मसलन डूंट इंटरनेशनल स्कूल, खुदा बख्श पब्लिक स्कूल, जेपी वर्ल्ड स्कूल, एसपी स्मार्ट पब्लिक स्कूल और मायर स्कूल वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। लिहाजा वालिदैन से गुजारिश है, मुतहरी एजुकेशनल सोसाइटी के वसातात से चलाए जाने वाले इस बेहतरीन हॉस्टल में अपने अजीज़ बच्चों को 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास में दाखिला देकर हमें खिदमत करने का मौका दें। मज़ीद तफसील और एडमिशन प्रोसेस के लिए MES ऑफिस इमाम ख़ुमैनी टावर कारगिल या मंदरजा झेल टेलीफोन नंबर पर राबिता कायम कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट अब 30 नवंबर तक एक्सटेंड हो गई है। फॉर्म MES ऑफिस कारगिल या वार्डन ऑफिस रायका जम्मू बठिंडी से हासिल हो सकते हैं। अब पेश कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी पर बहस एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान आगा सईद रूहुल्लाह महदी ने आइंदा माह इस पॉलिसी के खिलाफ दोबारा सड़कों पर आकर एहतजाज करने का ऐलान किया है। रिजर्वेशन पॉलिसी पर जम्मू और कश्मीर की बेशतर आबादी खासकर नौजवान और तलबा नाला है और इसे नाइंसाफ़ी करार दे रहे हैं। आगा सईद रूहुल्लाह महदी 20 दिसंबर को पार्लियामेंट इजलास ख़त्म होते ही तलबा के साथ एहतजाज में शामिल होंगे। एहतजाज कर रहे तलबा 2022 में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की जानिब से मुतारिफ की गई रिजर्वेशन पॉलिसी के असर व जायज़े का मुतालिबा कर रहे हैं। गुज़श्ता बरस भी 20 दिसंबर को रूहुल्लाह ने गुपकार में उमर अब्दुल्ला के रहाइश गाह के बाहर सैकड़ों नौजवानों के हमरा ऐसा ही एहतजाज किया था। रिजर्वेशन के खिलाफ फिर से नाराज़गी की नई लहर उस वक़्त उठी जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट की 600 असामियों के लिए इश्तिहार से किया। इन 600 नशस्तों में से सिर्फ 240 नशस्तें ही ओपन मेरिट के लिए हैं, जबकि 360 नशस्तें मुख्तलिफ महफूज ज़ुमरों के लिए मख्तस की गई हैं।
मुल्क में कौमी सतह पर हर साल 26 नवंबर को यौम आइन के तौर पर मनाया जाता है, जो मुल्क के जमहूरी सफ़र और आइनी अक़दार की मजबूत बुनियाद की याद दहानी करवाता है। ये दिन न सिर्फ तारीखी अहमियत रखता है बल्कि मौजूदा दौर में शहरी शऊर, बुनियादी हुकूक, आइनी पाबंदी और जमहूरी जिम्मेदारियों के एहसास को बढ़ाने का ज़रिया भी बनता है। हिंदुस्तान की तारीख में 26 नवंबर 1949 को वो तारीखी दिन था जब दस्तूर साज असम्बली ने तवील बहस, गौर फिक्र और मुख्तलिफ कमेटियों की तजावीज़ के बाद हिंदुस्तान का आइन बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया। यह कबूलियत आज़ादी के बाद जमहूरी ढांचे को वाज़ेह सिमत फराहम करने वाली फैसला कुन पेशरफ मानी जाती है। अगरचे आइन 26 नवंबर को मंजूर हुआ, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को नाफिज किया गया, जो अब यौम जमहूरिया के तौर पर पूरी शान वक़ार के साथ मनाया जाता है। इसलिए 26 नवंबर और 26 जनवरी दोनों तारीखें हिंदुस्तानी जमहूरियत की अलामत मानी जाती हैं, मगर इनका पस मंज़र और मानवी दायरा मुख्तलिफ है। दिलचस्प बात यह है कि 26 नवंबर को पहले कौमी कानून या नेशनल लॉ डे के तौर पर मनाया जाता था। 1979 में ये साबिका सफारतकार और पार्लियामेंट रुकन LM संघवी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में तजवीज़ पेश की कि इस दिन को कानूनी निज़ाम, इंसाफ की फराहमी, वकालत के किरदार और अदालती जिम्मेदारियों की अहमियत उजागर करने के लिए मनाया जाए। इसी सिफारिश के बाद कई दहाइयों तक 26 नवंबर को कौमी कानूनी दिन के तौर पर तस्लीम किया गया। अक्टूबर 2015 में जब मरकजी हुकूमत ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की विरासत, समाजी इंसाफ, बराबरी और आइनी इक़दार के फ़रोग़ के लिए नई हिकमत अमली तैयार की, तो 26 नवंबर को बाज़ाब्ता तौर पर यौम आइन करार देने का ऐलान किया। अंसारुल्लाह यमन के सरबराह सईद अब्दुल मलिक अल हौसी ने हिज़्बुल्लाह लुबनान के शहीद कमांडर हैसम तबातबाई की शहादत पर गहरे अफसोस और ताज़ियत का इज़हार करते हुए सुन्नी जारियत के मुकाबले में हिज़्बुल्लाह की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। अल मसीरा चैनल के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम के नाम एक पैगाम में अब्दुल मलिक अल हौसी ने अपने पैगाम में कहा कि वो शहीद तबातबाई और इनके साथियों के अहल खाना को दिली ताज़ियत और शहादत पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद तबातबाई की ज़िंदगी खैर, बरकत और अमल सालिह से मामूर थी और उन्होंने मज़ाहमती महाज में अजीम खिदमात अंजाम दिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहीद तबातबाई के मुजाहिदाना किरदार और अजीम फिदाकारियों के बाइस इनका नाम तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेगा, जबकि हकीकी अनआम इन्हें शहादत और दायमी हयात की सूरत में मिला। अब्दुल मलिक अल हौसी ने इसराइली जारियत की मजम्मत करते हुए कहा कि शहीद तबातबाई को निशाना बनाना और लिबनान व गज़ा पर हमला इस बात का सबूत है कि सियोनी हुकूमत अपनी जारिहाना और मुजरिमाना पॉलिसियों पर कायम है। दुश्मन न किसी मुआहिदे का पाबंद है, न अखलाकी हदूद का ख्याल करता है, क्योंकि इसे मुकम्मल अमरीकी हिमायत हासिल है। अंसारुल्लाह के रहनुमा ने बाज़ इलाक़ाई ममालिक की जानिब से सियोनी दबाव के सामने सर झुकाने पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि कुछ हुकूमतें न सिर्फ खामोश हैं बल्कि मुक़ावमत को गैर मुसल्लह करने के एजेंडे को भी कबूल कर रही है। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।